بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں 35 سال کی ہو چکی تھی اور کنواری تھی۔ سب مذاق اڑاتے۔ تنگ آ کر میں نے مشہور کر دیا کہ مجھ پر جن عاشق ہے جو میری شادی نہیں ہونے دیتا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اسی رات امی نے ابو کے سامنے کھانا رکھا تو ابو نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا، سناؤ بیگم، افسانہ کا رشتہ آیا تھا؟ رشتے والوں نے کوئی جواب نہیں دیا؟ امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں جواب دیا ہے، نہ کہا ہے، عمر زیادہ ہے لڑکی کی۔ ابو نے نوالا واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، افسانہ کی ماں ہر بار یہی جواب سن کر اب مجھے کوفت ہونے لگی ہے۔ اب تو دل کرتا ہے کسی کو بیٹی دیکھنے کے لیے آنے بھی نہ دوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، بیٹی کو گھر پر بھی تو نہیں بٹھا کر رکھ سکتے۔ امی نے کہا، ارے آپ نے نوالا کیوں رکھ دیا؟ کھانا تو کھائیں، اللہ بہتر کرے گا، کیا پتا اچانک اتنا اچھا رشتہ آ جائے کہ ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ ابو نے کہا، اللہ کرے۔ میری تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، افسانہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی اپنی اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ امی نے ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کھانا کھائیں۔ میں کمرے سے باہر کھڑی امی ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا بھی دل افسردہ ہوا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ چھت پر چل پڑی۔ میرا نام افسانہ ہے، میرے ابو سرکاری دفتر میں کلرک ہے۔ ساری زندگی اپنے بچوں کی رزق کے حالات پر پرورش کرنے والے باپ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے وہ چکا چون اسٹیٹس نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہو سکیں، بھاگتے چلے آئیں کہ ہاں اس گھر سے لڑکی کے ساتھ گھر کا سارا سامان بھی مل جائے گا، زیور بھی ملے گا اور گاڑی بھی، چلو گاڑی نہ صحیح 125 موٹر سائیکل تو دیں گے ہی۔ میری تعلیم BA تک ہے، کیا فائدہ میری اتنی تعلیم کا یا میری اچھی شکل و صورت کا جب لوگوں کو اسٹیٹس ہی چاہیے تو؟ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ گیٹ کی بیل بجی۔ امی نے گیٹ کھولا، میں چھت کے اوپر سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کاشف بھائی اندر آئے۔ کاشف بھائی بڑی پھپھو کے بڑے بیٹے ہیں، بڑے ہی ہنسمکھ ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں خوش ہو گئی۔ میں نے چھت سے ہی ہاتھ ہلایا اور چلائے، السلام علیکم کاشف بھائی۔ کاشف بھائی نے چھت کے اوپر دیکھا اور شرارتی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، وعلیکم السلام بھورے آنکھوں والی بلی، کیا حال ہے؟ اوپر سے کیوں جھانک رہی ہو؟ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ کاشف بھائی اندر صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، کاشف بھائی کیا لائے ہیں؟ کاشف بھائی نے کہا، چچی اس بھوری بلی کو کب رخصت کر رہی ہیں؟ ہر کسی کی چیزوں پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ تو ایسے مجھ سے تنگ ہیں جیسے مجھے آپ نے سنبھال رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے نکل پڑی۔ پیچھے سے کاشف بھائی بولے، میری پیاری بھوری بہن، تو ہے ہی سنبھال کے رکھنے والی چیز۔ پتہ نہیں کون خوش قسمت ہے جس کے نصیب میں ہماری بھوری بلی لکھی ہے۔ کاشف بھائی کی باتیں سن کر میں شرمائی، تھوڑا سا مسکرائی اور پھر کمرے سے نکل آئی۔ آج میری پیاری سہیلی کی منگنی کی رسم تھی۔ میں امی کے ساتھ سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میری سہیلی کا رشتہ بہت اچھی جگہ ہوا تھا، لوگ بھی تو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔ ارے چھوٹی عمر ہے، اتنی سی عمر میں شادی کر رہے ہو؟ ارے عمر زیادہ ہو رہی ہے، اب نہیں کرو گے تو پھر کب شادی کرو گے؟ لوگ ہیں کہ کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ جمیلہ بوا نے امی سے کہا، اے عشرت، افسانہ کی بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ کب تک اسے بٹھا کر رکھنا ہے؟ خالہ شمیم تو جیسے اس ٹاپک کے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً برکت ڈالنے کے لیے کود پڑی اور بولی، ارے بھائی، آج کل کی لڑکیوں کے جتنے نخرے ہیں اللہ معاف کرے۔ میری نواسیوں کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ انٹر کرتے ہی ان کی شادیاں کی ہیں، اپنے گھر میں خوش باش ہے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ ہم نے کون سا بڑے بڑے ڈیمانڈ رکھے تھے؟ تو پھر امی نے کہا، خالہ شمیم، تو ہم نے کون سے ڈیمانڈز رکھے ہوئے ہیں؟ بس یہی چاہتے ہیں کہ بیٹی کو جو بھی لے کر جائے عزت سے حق حلال کی کما کر کھلا سکے اور عزت سے رکھ سکے۔ اگر یہ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے تو بیٹی ہمارے پاس بیٹھی ہی ٹھیک ہے۔ میں نے چڑھ کر کہا، امی آپ بتاتی کیوں نہیں مجھ پر ایک جن زیادہ عاشق ہے، وہ میری شادی کہیں ہونے نہیں دیتا، بتائیں نا خالہ شمیم کو۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وہاں بیٹھی سب خواتین مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، سب کی نظریں سوال کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جمیلہ بوا بولی، عشرت یہ افسانہ کیا کہہ رہی ہے؟
امی کچھ گھبرا گئی۔ میں نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور بولی، امی بتائیں اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ وہاں موجود تمام عورتیں آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگی۔ خالہ شمیم طنز کرتے ہوئے بولی، لو سناؤ، عشرت تم جن زادے کے ساتھ ہی افسانہ کی شادی کر دو، چلو جنات کی بارات آئے گی تو خوب رونق لگے گی۔ امی نے غصے سے میری طرف دیکھا تو میں نے رستہ بدلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ہم گھر پہنچے، امی نے چادر اتار کر بیڈ پر رکھا اور بولی، افسانہ تجھ پر کون سا جن عاشق ہے؟ ہاں، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، امی اب کچھ تو کہنا ہی تھا، دیکھا کتنا اچھا جواب دیا کہ سب لاجواب ہو گئے۔ امی نے کہا، افسانہ تو کیا پاگل ہو گئے ہے؟ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ تجھ پر جن زیادہ عاشق ہے تو کون تیرا رشتہ لے کر آئے گا؟ میں نے کہا، ہاں پہلے تو جیسے رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ امی بولی، افسانہ مجھے بحث نہیں چاہیے، تو نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے۔ میں نے کہا، امی آپ خود تو کہتی ہیں کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ امی نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وقت مقررہ کے سامنے جانتے بوجھتے دیوار کھڑی کر دی جائے۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل جائے گا۔ اگلی صبح ہم ناشتے سے فارغ ہوئے۔ گھر کے کام سے فارغ ہو کر میں نے اپنی چادر اوڑھی، پرس اٹھایا اور امی کے کمرے میں آئی۔ امی میں مارکیٹ جا رہی ہوں۔ امی نے کہا، اچانک مارکیٹ کیوں؟ میں نے کہا، امی میں نے اپنی سہیلی کی منگنی پر اسے گفٹ نہیں دیا، وہی لینا ہے۔ امی نے کہا، اکیلے نہ جاؤ بیٹا، میں بھی چلتی ہوں۔ میں نے کہا، امی پریشان نہ ہو، میں کون سا بچی ہوں کہ گم ہو جاؤں گی، جلدی آ جاؤں گی۔ میں نے امی کو منایا اور مارکیٹ آ گئی۔ مارکیٹ سے میں نے اپنی سہیلی کے لیے ایک سوٹ خریدا اور واپسی کے لیے رکشے کا انتظار کرنے لگی کہ میری نظر قریب ہی مزار پر پڑی۔ لوگوں کا کتنا ہجوم تھا، دل میں ایک خیال آیا، میں مزار کی طرف چل پڑی۔ لوگ نہ جانے اپنی کتنی پریشانیاں دعاؤں کی گٹری میں باندھے اللہ والوں کی بارگاہ میں روز حاضری دیتے ہیں۔ گٹری یہی چھوڑ جاتے ہیں اور ساتھ یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ اب پریشانیاں راحت میں بدل جائیں گی۔ اکثر و بیشتر دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں، لیکن دعائیں قبول تو ہوتی ہی ہے، جلد یا بدیر، اور جو نہیں ہوتی ان کا اجر آخرت کے لیے بچا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی شادی کی دعا دل میں لیے مزار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اپنے نازک خیالات دل میں چھپائے مزار کے اندر داخل ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ مزار سے نکلی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک میری چادر کو جیسے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ میں نے سر سے سرکتی چادر کو سنبھالا، چہرے کی چادر کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے منہ میں دبایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک نہایت خوبصورت نوجوان، شاید میری ہی عمر کا ہوگا، کھڑا تھا اور میری چادر کا ایک کونا اس کے ہاتھ میں بندھی گٹری کے ہک سے الجھا ہوا تھا۔ وہ میری چادر کو اپنی گٹری سے آزاد کرتے ہوئے بولا، دعا کرتا ہوں آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ میں خاموش رہی اور واپسی کے لیے مڑی۔ اس کی دوبارہ آواز آئی، دنیا میں سب سے مشکل محبت اور خلوص کا ملنا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، محبت اسٹیٹس کی بھیڑ میں کہیں کھو گئی ہے، جب تک اس بھیڑ سے نکلے گی تب تک پتہ نہیں کتنی دیر ہو چکی ہوگی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں جیسے کسی سمندر کے مانند گہری ہوں۔ میں مزار سے باہر نکلی، رکشہ لیا اور گھر آ گئی۔ اللہ والوں کے دروازے پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی نے خوش ہو کر کہا، ہاں بیٹا بہت اچھا کیا، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ شام کا وقت تھا، میں چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ چھت پر تو ہلکی ہوا بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شام کا وقت، اوپر سے ہلکی ہوا، موسم بھی خزاں کا تھا، تو مجھے گرمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اسی لمحے میرا پاؤں پھسلا، میں فرش پہ گرنے ہی لگی تھی کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ مجھے اپنی کلائی پر باقاعدہ کوئی لمس محسوس ہوا۔ میرے ارد گرد ہوا مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز تو نہیں تھی تو میرے ارد گرد اتنی تیز کیوں تھی؟ میرے کھلے بال اڑ اڑ کر میرے چہرے پر اٹکیلیاں کر رہے تھے، زرد پتے اڑتے ہوئے چھت پر گر رہے تھے۔ خزاں رسیدہ میری آنکھوں نے اس انجان چہرے کی شبیہ بنانے کی کوشش کی جس نے میرا ہمسفر بننا تھا کہ اچانک خیالوں کے جھرمٹ سے ان دو نیلی آنکھوں نے جھانکا
जिन्हें मैंने मज़ार पर देखा था। अरे नहीं, मैंने अपने ख्याल को झटका। जर्द शाम अब दीवारों से नीचे उतरने लगी थी। मैं भी नीचे चली आई क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मगरिब होने वाली थी। मकसद कहाँ चले गए थे तुम? जिनज़ादा आकाश बोला। मकसद जिनज़ादा बेचैनी से टहल रहा था और मुंह ही मुंह में मुस्कुरा रहा था। आकाश बोला, क्या बात है मकसद, कोई बात हुई है? मकसद रुका। उसने आकाश की तरफ देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। फिर रुका, आकाश के करीब आया और बोला, जानते हो, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। आकाश हंसा और बोला, अरे वाह, अच्छे दोस्त हो, अब बता रहे हो, वो भी मेरे पूछने पर। ये बात तो तुम्हें मुझे खुद बताना चाहिए थी। कौन है वो खुशकिस्मत? जरूर कोई परी होगी। मुझे तो पहले ही इल्म था कि मेरा दोस्त परी से नीचे तो बात करेगा ही नहीं। मकसद जिनज़ादा बोला, नहीं आकाश, परी नहीं है। आकाश बोला, तो फिर कौन है? मकसद चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, वो इंसान सादी है। आकाश फटी आंखों से मकसद की तरफ देखने लगा। दोनों दोस्तों के दरमियान चंद लम्हे खामोशी रही। फिर आकाश जिनज़ादे ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मकसद, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अनहोनी को होनी करना चाह रहे हो। तुम्हारे वालिद मोहतरम शहंशाह जन्नात के मुशीर खास हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे वालिद मोहतरम इंसानों के लिए अच्छी राय नहीं रखते हैं। उनका ख्याल है कि इंसान धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर कमाल ढिठाई से उस पर फख्र करते हैं। मकसद बोला, आकाश, मैं अपने बाबा हुजूर को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ऐसे जिन हम जिन्नात भी हैं। बाबा हुजूर ने बिला वजह ही इंसानों के बारे में एक राय कायम करके उसे अपने दिमाग में बिठा लिया। आकाश बोला, मगर वो इंसान सादी तुम्हें मिली कहाँ? मकसद ने मुस्कुराते हुए कहा, मज़ार पर। आकाश चौंका, क्या मज़ार पर? तुम तो वहां अपनी शादी के लिए दुआ में परी मांगने गए थे और इंसान सादी पर आशिक हो गए। मकसद बोला, देख मेरे भाई, वो खूबसूरत है। अगर उसे रेशम का लिबास पहनाकर उसके पीछे 2 पर लगा दिए जाएं तो वो भी किसी परी से कम नहीं लगेगी। आकाश ने कहा, मेरा ख्याल है तू अपने इस इरादे से पीछे हट जा। मकसद जिनज़ादा बोला, वो क्यों? आकाश ने कहा, वो इसलिए कि तेरे वालिद मोहतरम नहीं मानेंगे। अगर वो मान भी गए तो वो इंसान ज़ादी नहीं मानेगी, देखना। हम जिन्नात हैं, इंसान हमसे डरते हैं। मकसद बोला, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आकाश बोला, तुझे उसे भूल जाना चाहिए। मकसद ने कहा, ठीक है, मैं भी इंसान बनकर उसका दिल जीतूंगा। आकाश चिल्लाया, क्या? मैं तुझे उसे भुलाने का कह रहा हूँ और तू इंसान बनकर उसे जीतने की बातें कर रहा है? और अगर तू थोड़ी देर के लिए इंसान बन भी जाए तब भी तू जिनज़ादा ही रहेगा। एक ना एक दिन उसे पता चल जाएगा कि तुम जिनज़ादे हो, फिर तुम क्या करोगे? मकसद आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तब तक मैं उसका दिल जीत चुका हूँगा। मैं सूट लेकर अपनी सहेली किश्वर के घर की तरफ चल पड़ी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी सहेली किश्वर की छोटी बहन ने दरवाजा खोला। मैं अंदर चली आई। किश्वर मुझे देखते ही मेरे पास भागती आई, मेरे गले लग गई और बोली, अफसाना, तू भी बिल्कुल अफसाना ही हो गई है, मिलने भी नहीं आती। मैंने कहा, हाँ, तू तो अब रुखसती की तैयारी कर रही है। मैं नहीं, तू अफसाना बनने वाली है। तेरे जाने के बाद मैं सिर्फ तुझे सोचा करूंगी कि मेरी भी एक सहेली थी। हम बातें करते करते अफसाना के कमरे में चले गए। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, आंटी कहाँ है, नजर नहीं आ रही हैं। किश्वर मेरे पास बैठते हुए बोली, अम्मी मार्केट गई हुई हैं। मैंने कहा, ओह अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, शादी की तैयारियां चल रही हैं। किश्वर शर्माते हुए बोली, हाँ यार, तूने ठीक समझा। मैंने सूट किश्वर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं भी तेरे लिए तोहफा लाई हूँ, देखकर बता कैसा है। किश्वर ने झट से शॉपिंग बैग मेरे हाथ से लिया और बोली, हैं सच्ची? वो जोड़ा देखने लगी और बोली, वाह अफसाना, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगा होगा। मैंने कहा, हाँ, मेरी सहेली से ज्यादा महंगा नहीं है। हम काफी देर एक साथ बातें करते रहे। फिर मैंने किश्वर से इजाजत ली और वापस घर की तरफ चल पड़ी। किश्वर का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैं पैदल अपने घर की तरफ जा रही थी। सामने से मोटरसाइकिल वाला आ रहा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। वो अजीब तरीके से मोटरसाइकिल चला रहा था।
मोटरसाइकिल उसके काबू में ही नहीं आ रही थी। लेकिन ऐसा क्यों था? पूरी गली तो खाली पड़ी थी। मैं खुद उसे देखकर घबरा गई। वो मेरे करीब आ रहा था। अरे, ये कर क्या रहा था? मैंने दिल में कहा कि अचानक वो मेरी तरफ आया। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने ब्रेक लगाई, पर ब्रेक लगाने में वो थोड़ा लेट हो गया। वो सीधा मेरी तरफ आया। मोटरसाइकिल का हैंडल मुझसे टकराया। मैं नीचे गिर पड़ी। वो भी मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर पड़ा। मैं चिल्लाई, बड़ी जल्दी ब्रेक लगा ली तुमने। चलाना नहीं आती तो पहले सीख लो, या सड़क पर बंदे मारना चाहते हो? वो भी उठा। मेरी उस पर नजर पड़ी। ये तो वही लड़का था, नीली आंखों वाला, जिससे मेरा सामना मजार पर हुआ था। वो जल्दी जल्दी खड़ा हो गया, मेरे करीब आया और बोला, मैं आपकी मदद करूं? मैं भी उठी। मैंने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि दूसरों को मोटरसाइकिल के नीचे देने की बजाय चलाना सीख लो। ये तुम्हारा लोगों पर एहसान होगा। ये कहकर मैं कपड़े झाड़ती चल पड़ी। वो बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं आपसे मजार पर मिला था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराई, उसकी तरफ मुड़ी और बोली, मैंने आपको पहचान लिया है, लेकिन क्या ये बताना जरूरी है? वो मुझे देखकर मुस्कुराया और उसने नहीं में सर हिला दिया। मैं वापस घर की तरफ चल पड़ी। बरखुरदार, तुम आजकल कहाँ गायब रहते हो? कई दिन से कोकाफ में बिल्कुल नजर नहीं आते हो। मकसद बोला, बाबा हुजूर, बस जब दिल नहीं लगता है तो सैर के लिए कहीं न कहीं निकल जाता हूँ। मकसद का बाप बोला, तो आजकल कहाँ दिल लग रहा है तुम्हारा? मकसद घबरा गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जिनजादी माँ बोली, हुजूर, मैं तो कब से कह रही हूँ कि बेटे की शादी कर दे। दिल लगाने का इंतजाम खुद ब खुद हो जाएगा। मकसद बोला, माँ, मैं शादी अपनी पसंद से करूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मकसद का बाप बोला, तो अपनी पसंद बता भी दो, हमने कौन सा तुम्हारी पसंद पर एतराज लगाया है? मकसद ने कहा, जी बाबा हुजूर, मुझे आकाश ने बुलाया है, उसे कोई काम है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर मकसद जल्दी से कमरे से निकल गया। आकाश, जो पहले ही बाग में मकसद का मुंतजर खड़ा था, उसे आता देखकर मुस्कुराने लगा। मकसद जिनजादा अपने दोस्त के पास पहुंचा। आकाश बोला, सुनाओ मकसद, कैसा रहा सब? मकसद बाग में नस खूबसूरत बेंच पर बैठते हुए बोला, इंतहाई परेशान कुन। आकाश बोला, परेशान कुन? वो क्यों? मकसद बोला, मेरे भाई, इंसानों वाले काम तो बहुत मुश्किल है। हम कितनी आसानी से पलक झपकते यहाँ वहाँ गायब होकर पहुंच जाते हैं, और इंसान एक मोटरसाइकिल नामी सवारी चलाने के लिए कितनी मुशक्कत करते हैं। अच्छा भला मैं उसके पास पहुंचने ही वाला था कि उसे भी गिरा दिया और खुद भी गिर गया। आकाश चिल्लाया, क्या? आकाश उसके पास बैठते हुए बोला, क्या वो बच गई? मकसद मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, वो बच गई, लेकिन मुझे उसकी नजरों ने शदीद घायल कर दिया है। आकाश बोला, मकसद, तुझे ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। मकसद बोला, सस्ती चीज कभी मैंने ली है? हाँ। आकाश ने कहा, बस तेरा अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे समझाना अब बेकार है, मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। मकसद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, जैसे मरने वाले के लिए सिर्फ उसकी बख्शिश के लिए दुआ ही की जाती है, बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत करने वालों को भी सिर्फ दुआ की ही जरूरत होती है। वो भी जिंदा कब होते हैं, उनकी रूह तो किसी की मोहब्बत में तहलील हो ही चुकी होती है। आकाश ने मकसद को कंधे से हिलाया और बोला, ओ मेरे प्यारे दोस्त, जहां भी है वापस आ जा। मैं घर के कामकाज में मसरूफ थी। फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा, मैं एक बंदे को भेज रहा हूँ, वो इस्त्री और वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है ना, वो दोनों घर आकर ही ठीक कर देगा। मैंने कहा, अब्बू प्लीज जल्दी से भेजें, आपको अंदाजा नहीं है कपड़ों का कितना मसला बना हुआ है। अब्बू ने कहा, बेटा भेज तो रहा हूँ, मैंने उसे उसकी मजदूरी दे दी है, तुम कुछ न देना, जब ठीक हो जाए तो मुझे फोन करके बता देना। मैंने कहा, ठीक है अब्बू। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। अभी रिसीवर रखकर मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि गेट की बेल बजी। मैं गेट पर गई। मैंने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, आपकी इस्त्री और वॉशिंग मशीन ठीक करने आया हूँ। ये सुनकर मैंने झट से दरवाजा खोल दिया, लेकिन ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो वही लड़का था, नीली आंखों वाला। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तुम?
वो बोला, जी मैं। अम्मी की आवाज आई, अफसाना कौन है? मैंने कहा, अम्मी, अब्बू ने एक बंदा भेजा है इस्त्री और वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए। अम्मी ने कहा, ओह अच्छा, तो उसे अंदर बुला लो। मैंने उसे अंदर बुला लिया। वो अंदर आ गया। मैं उसे वॉशिंग मशीन और इस्त्री के पास ले गई। हमने दोनों चीजें ही बरामदे में इकट्ठी रखी हुई थीं। वो बोला, क्या मसला है आपकी चीजों को? मैंने कहा, वैसे तो ये दोनों जल गए हैं, बाकी मसला आप बताएंगे। उसने इस्त्री और मशीन को गौर से देखा, फिर नीचे बैठ गया। वो बगौर इस्त्री और मशीन को देख रहा था। मैंने कहा, आप ठीक भी करेंगे या इन्हें देखते ही रहेंगे? वो मुस्कुरा कर बोला, जी बिल्कुल, मैं ठीक करता हूँ। आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगी? मैंने कहा, जी जरूर। मैं किचन में गई और थोड़ी देर बाद पानी लेकर वापस आई। उसने पानी पिया और बोला, जरा मशीन और इस्त्री की तार लगाकर चेक करें। मेरा ख्याल है कि अब ठीक हो गई है। मैंने कहा, जी, आपने इन्हें देखते ही देखते ठीक कर दिया है? वो बोला, जी, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने अपनी दोनों भवें जोड़ते हुए उसे देखा और बोली, नहीं, हर्ज तो कोई भी नहीं। इतने में अम्मी भी वहां पहुंच गए। मैंने वॉशिंग मशीन का तार लगाया, बटन ऑन किया तो वॉशिंग मशीन ऑन हो गई। ये क्या? मैंने आंखें फाड़ते हुए उसे देखा। मैंने जल्दी से इस्त्री की तार लगाई तो इस्त्री भी ऑन हो गई। अम्मी ने कहा, बेटा, इतनी जल्दी तुमने दोनों चीजें ठीक कर दी हैं? इनमें खराबी क्या थी? मकसद बोला, कुछ खास खराबी नहीं थी खाला जी, बस मशीन है, थोड़ा सा भी फर्क लग जाए तो ये चलने से जवाब दे जाती है। मैंने कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आपने हाथ भी नहीं लगाया और ये ठीक भी हो गए? अम्मी बोली, खैर है बेटा, ठीक तो हो गए ना, हो सकता है कोई मामूली खराबी हो। यही दुकान पर लेकर जाते तो उन्होंने 10 दिन अपने पास रखना था और 100 तरह की खराबियां निकाल देते, फिर पैसे भी दुगने लेते। अम्मी ने मकसद के सर पर हाथ रखा और बोली, खुश रहो बेटा, खुश रहो। मकसद ने मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा। अम्मी ने कहा, बेटा, चाय पियोगे? वो जल्दी से बोला, जी खाला, आप पिलाएंगी तो जरूर पीऊंगा। अम्मी ने कहा, अफसाना, चाय बना कर लाओ, हम बैठक में बैठे हैं। अम्मी ने कहा, हाँ तो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अम्मी और मकसद बैठक की तरफ चल पड़े और मैं चाय बनाने किचन में चली आई। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस मोहम्मे में उलझे मैंने चाय बनाई और बैठक में चली आई। मैंने चाय उसके सामने रखी। अम्मी ने कहा, चाय पियो बेटा, मुझे तो तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। अब तो इलेक्ट्रिक की कोई चीज भी खराब हुई तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी, अपना नंबर दे दो। मकसद ने हैरत से अम्मी की तरफ देखा और बोला, कैसा नंबर खाला जी? अम्मी ने कहा, अरे बेटा, फोन नंबर और क्या। मकसद हैरान और परेशान कभी मेरी तरफ और कभी अम्मी की तरफ देख रहा था। चंद लम्हों बाद वो बोला, खाला, वो तो नहीं है मेरे पास। अम्मी ने कहा, कमाल है, आज के दौर में तुम फोन नहीं इस्तेमाल करते हो, हैरत की बात है। मकसद बोला, जी खाला, बस मुझे पसंद नहीं है। अम्मी ने कहा, क्या? मकसद बोला, वही जो आपने अभी कहा। अम्मी बोली, फोन? मकसद बोला, जी जी वही। अम्मी बोली, ओह अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बड़े सादतमंद बच्चे हो। इस दौर में भी तुम्हें फोन का नहीं पता। मैं अम्मी के पास ही बैठी हुई थी। मैंने अम्मी के कान में सरगोशी की। अम्मी, एक अजनबी पर आप तो फिदा ही हो जा रही हैं। अम्मी ने कहा, तू चुप कर। इतने में मकसद ने चाय का कप उठाया। उसमें चाय का एक घूंट भरा ही था कि उसने अजीब और गरीब शक्ल बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा, क्या हुआ, चाय पसंद नहीं आई आपको? वो बोला, जी नहीं, बहुत अच्छी है। ये कहते ही वो सारी चाय एक ही घूंट में पी गया। चाय पीते ही वो खड़ा हुआ और बोला, खाला जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दें। अम्मी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। वो बहुत नर्वस नजर आ रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। कोकाफ में शहनशाह जन्नात का दरबार लगा हुआ था। शहनशाह के खास जन्नात, जो कि कोकाफ के उमूर संभालते थे, बैठे हुए थे। शहनशाह जन्नात अपने तख्त पर विराजमान था। रोब दबदबा उसके चेहरे से आया था कि एक जिन दरबार में दाखिल हुआ। उसने अदब से शहनशाह को सलाम किया और सर झुकाकर खामोशी से खड़ा हो गया। शहनशाह जन्नात बोला, कैसे हो तजार जिन, क्या मसरूफियत बनाई हुई है आजकल? तजार जिन खामोशी से सर झुकाए खड़ा था, कुछ न बोला।
शहंशाह बोला, हमने पहले भी कई बार तुम्हें मना किया है, लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि तुम्हें इंसानों को तंग करके क्या मिल जाता है। बोलो, क्या मिलता है? आज सबको बता ही दो। ताजार जिन कुछ न बोला। शहंशाह चंद लम्हों के बाद दोबारा बोला, ताजार जिन, तुम्हें क्या मालूम जब कोई तंग करता है तो कितना बुरा लगता है। ऊपर से तुम इंसानों को तंग कर रहे हो जो पहले ही हमसे डरते हैं। तुम इंसानों में हमें बदनाम कर रहे हो। खुद बताओ, अगर कल को हम में से किसी को इंसानों के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ जाए तो क्या वो हमारे साथ रिश्ता जोड़ेंगे? शहंशाह के मुंह से रिश्ता जोड़ने की बात सुनकर दरबार में मौजूद तमाम जिन्नात ने चौंक कर शहंशाह जिन्नात की तरफ देखा। शहंशाह जिन्नात का मुशीर खास, जो कि मकसद का वालिद था, निहायत अदब से बोला, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। इंसानों के साथ रिश्ता जोड़ने वाली बात मैं समझ नहीं सका। आखिर हम उनके साथ क्यों रिश्ता जोड़ने लगे? हम अल्लाह की तख्लीक करता दो अलग मखलूक हैं। वो हमारे माहौल में नहीं रह सकते और हम उनके माहौल में नहीं रह सकते। और वैसे भी, शहंशाह ने मुशीर खास की बात काटते हुए कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ। अनहोनी तो कोई भी हो सकती है। हम जिन्नात हैं, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कुछ इल्म ऐसे हैं जो अल्लाह ने अपने पास रखे हुए हैं। उस पर तो तुम्हारा यकीन है ना? मुशीर खास ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, जी बिल्कुल शहंशाह मोहतरम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। शहंशाह जिन्नात ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुशीर खास, तुम्हारे दिल में भी इंसानों के लिए बहुत गलत फहमी है। मेरा मशवरा है कि तुम भी अपना दिल साफ कर लो। उसके बाद शहंशाह जिन्नात ताजार जिन से मुखातिब हुआ, ताजार जिन, मैं पहले कई बार तुम्हें ज़बानी कलामी मना कर चुका हूँ, लेकिन अब अगर मुझे तुम्हारी शिकायत मिली तो तुम्हें सजा मिलेगी। ताजार जिन सर झुकाए बोला, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। शहंशाह ने उसे दरबार से बाहर जाने का इशारा किया। ताजार जिन दरबार से बाहर चला गया तो शहंशाह दरबार में बैठे तमाम दरबारियों और मोअज़्ज़िज़ीन से मुखातिब हुआ और बोला, हमें हमेशा अपने दिल में दूसरों के लिए गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दिल में दूसरों के लिए गुंजाइश रखते हैं तो हम खुद ब खुद दूसरों के दिल में अपने लिए गुंजाइश बना रहे होते हैं। ये इस कदर मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस खुद को कायल करना है। दरबार के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन अदब से हाँ में सर हिलाते हुए शहंशाह के हाँ में हाँ मिला रहे थे। मकसद हवा में उड़ रहा था। अचानक उसे थकावट महसूस हुई तो वो बरगद के ऊंचे दरख्त की एक मोटी टहनी पर बैठ गया। वो बहुत अफसरदा नजर आ रहा था। इतने में आकाश भी उसके पास आकर बैठ गया। आकाश ने कहा, मुझे मालूम था कि तुम यही बैठे होगे, इसलिए मैं यही चला आया। क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो? मकसद बोला, मेरे प्यारे दोस्त, सच बताऊं तो मोहब्बत का इजहार इतना मुश्किल नहीं है जितना इंसान बनना मुश्किल है। मैं इंसानों वाले काम नहीं कर सकता। जानते हो, आज मैं उसके घर भी गया था, लेकिन तुम ठीक कहते हो, उसकी और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनकर आकाश बोला, चलो शुक्र है तुझे समझ तो आई। मेरी बात मान, हकीकत तुझे पता चल ही गई है तो उठ जा, अब घर चलते हैं। देखना कुछ दिन तक तू उसे भुला देगा। मकसद बोला, आकाश तू क्या बात कर रहा है? मैं उसे भूलने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे उससे अपनी पहचान छुपानी नहीं चाहिए। मुझे उसे अपने दिल की बात अपनी पहचान के साथ बतानी चाहिए। आकाश बोला, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं तुझे मना तो कर नहीं सकता और मुझे मालूम है कि तू मना होने वाला भी नहीं है, तो ये भी करके देख ले, क्योंकि मोहब्बत में जब तक इनकार या इकरार का फैसला न हो जाए दिल को करार नहीं आता है। हम दोपहर का खाना खाकर फारिग हुए तो अम्मी ने कहा, अफसाना बाकी काम तुम समेट लेना, मैं बुआ जमीला के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अम्मी के जाने के बाद मैंने किचन का काम खत्म किया और छत पर आ गई। हमारे घर के पिछली तरफ एक बाग था। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने यहाँ जमीन खरीद कर बाग बनाया था, क्योंकि उस इलाके की मिट्टी बहुत जरखेज थी। हमारे घर की छत से बाग बिल्कुल साफ नजर आता था। मैं छत पर बैठी बाग की तरफ ही देख रही थी कि अचानक बाग में मुझे एक बच्चा नजर आया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये कौन है?
میں نے دل ہی دل میں کہا، اس بچے نے مجھے پکارا، افسانہ آپ بھی یہاں آ جائیں، وہ بچہ مجھے وہاں کیوں بلا رہا ہے؟ گھر پر امی بھی نہیں تھی، میں کیسے جاتی؟ آخر میں چھت سے نیچے چلی آئی۔ اگلے دن پھر میرے ساتھ یہی ہوا، تو میں نے سوچا آج تو جاتی ہی ہوں، میں بھی تو دیکھوں وہ بچہ کون ہے جو 2 دن سے مجھے باغ میں بلا رہا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ میں باغ میں جا رہی ہوں۔ میں باغ میں چلی آئی، لیکن یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی باغ کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ ہر طرف خاموشی تھی، یہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ جو ہی میں واپس مڑی، میری سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، افسانہ۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ پھر وہی آواز دوبارہ ٹکرائی۔ کوئی کہہ رہا تھا، افسانہ۔ خزاں رسیدہ، یہ میری آنکھیں تمہاری ایک نظر کی طلبگار ہیں۔ تمہارے بغیر بہار بھی میرے لیے خزاں کی خاموشی سے کم نہیں ہے۔ میں رت جگہ کا بوجھ لے کر، جدائیوں کا سوگ لے کر تمہاری دنیا میں بھٹک رہا ہوں۔ میں ساتھ لایا ہوں دل کا تحفہ، ازل سے شاید میں جی رہا ہوں، ایک تیرے لیے ہی جی رہا ہوں۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن یہ کون تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسی لمحے میرے اوپر گلاب کے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ اف اللہ، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس باغ میں پھول نہیں تھے، یہ آم اور مالٹوں کا باغ تھا، اور یہ پھول کہاں سے آ رہے تھے؟ جس جگہ میں کھڑی تھی، صرف اسی جگہ میرے اوپر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ پھر میرے سامنے وہی نیلی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے تو پھول گرنا بند ہو گئے۔ آج تو وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے بالکل شہزادوں جیسا لباس سیبتن کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ بولا، تعارف اگر محبت ہوتا تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن محض اتنے سے تعارف سے کام نہیں چلتا ہے۔ میں جن زادہ ہوں۔ جس دن آپ کو مزار پر دیکھا تھا، اسی دن سے ہاتھوں میں اپنا دل لیے آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ انسان بن کر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں جن ہوں تو کہیں آپ مجھ سے ڈر ہی نہ جائیں۔ لیکن میں انسان بننے کی اداکاری زیادہ دن نہیں کر سکا، کیونکہ انسانوں والے کام تو میں نے کبھی کیے ہی نہیں ہیں۔ میں انسان بننے کے امتحان میں تو فیل ہو گیا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ محبت کے امتحان میں فیل نہیں ہوں گا، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں ہکا بکا اس کی باتیں سن رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ جنزادہ اور اتنی محبت کرنے والا، مجھے تو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بنا کچھ بولے وہاں سے چل پڑی۔ جنزادہ پکارا، افسانہ، کل پھر سے میں یہی تمہارا انتظار کروں گا۔ میں گھر پہنچی، میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میرا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ اف نہیں، میں نے تو آج تک کسی انسان سادے سے محبت نہیں کی تھی۔ اپنی محبت کو ہمیشہ اپنے ہونے والے ہمسفر کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ میں جنزادے سے کیسے محبت کر سکتی ہوں، اور کیوں کروں؟ یہ سوچ کر میں نے چادر میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مقصد جنزادہ گھر پہنچا۔ اس کے والد محترم بے چینی کے عالم میں گھر میں ٹہل رہے تھے۔ مقصد نے جب اپنے والد کو دیکھا تو مڑا اور خاموشی سے وہاں سے جانے لگا، لیکن جو ہی وہ مڑا، اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ والد محترم کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ میں کب سے تمہارا ہی تو انتظار کر رہا ہوں۔ مقصد نے کہا، اوہ بابا حضور، میں آکاش سے ملنے جا رہا ہوں۔ مقصد کے والد محترم بولے، ابھی تو تم آئے ہو، آکاش سے مل کر نہیں آ رہے کیا؟ مقصد بولا، نہیں، میں سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ والد محترم نے کہا، اچھا، سیر کے لیے کہاں گئے ہوئے تھے؟ مقصد بولا، کہیں نہیں بابا حضور، بس یہی تھا۔ والد محترم نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مقصد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس کے والد محترم نے کہا، مقصد، جانتے ہو کچھ دن پہلے شہنشاہ جنات نے دربار میں ہم سب سے کیا کہا تھا؟ مقصد بولا، کیا کہا تھا بابا حضور؟ اتنے میں مقصد کی والدہ بھی وہیں پہنچ گئی۔ مقصد کا والد بولا، شہنشاہ جنات نے کہا تھا کہ اگر کل کو ہم میں سے کسی کو انسانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑ جائے تو کیا وہ ہمارے ساتھ رشتہ جوڑیں گے؟ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ شہنشاہ جنات نے ایسا کیوں کہا تھا۔ شہنشاہ جنات کو علم ہو گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔
मकसद बोला, क्या हो रहा है बाबा हुजूर? मकसद के वालिद मोहतरम बोले, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं है। मकसद की वालदा बोली, आप खुलकर बात करें ना, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? मकसद का वालिद चिल्लाया, खुलकर बात करने के काबिल कहाँ छोड़ा है तुम्हारे लाडले ने? तुम्हारा लाडला एक इंसान सादी की मोहब्बत पे फना हो गया है और आजकल सुबह शाम उसी के दरबार में हाजिरी दे रहा है, इसीलिए सारा सारा दिन कोकाफ पे नजर नहीं आता है। यकीनन शहंशाह जन्नात को भी इस बात का इल्म हो चुका था, तभी उन्होंने इंसानों से रिश्ता जोड़ने की बात की थी और खास तौर पर मुझे कहा था कि मैं अपने दिल में इंसानों के लिए जो गलत फहमी लिए घूम रहा हूँ वो खत्म कर दूं। मकसद बोला, बाबा हुजूर, तो शहंशाह जन्नात ने क्या गलत कहा है? मकसद का वालिद उसकी माँ से मुखातिब हुआ, सुन लिया तुमने? अब तुम्हें इस पहेली का पता चल गया? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं अपने इकलौते बेटे की शादी किसी इंसान सादी से नहीं करूंगा। ये कहकर मकसद का वालिद चला गया। मकसद की वालदा, जो अब तक हैरान और परेशान खड़ी थी, मकसद के पास आई और बोली, मकसद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे वालिद इंसानों के बारे में कैसी राय रखते हैं। ऐसे रिश्ते जिनका कोई मुस्तकबिल ना हो, उनका तो कोई जवाब ही नहीं बनता है। मकसद बोला, वालदा, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं अफसाना के साथ ही शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मकसद की वालदा ने उसका बाजू पकड़कर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो मकसद? कुछ भी करना पड़े से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम उस इंसान जादी के लिए अपने वालिद के सामने खड़े हो जाओगे? मकसद बोला, वालदा, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन आप मुझे मजबूर ना करें, मैं अफसाना के साथ ही शादी करूंगा। ये कहकर मकसद चला गया। आज उस नीली आंखों वाले शहजादे को गए 4 दिन हो चुके थे। उसने मुझे अगले दिन बाग में आने का कहा था, लेकिन मैं नहीं गई। लेकिन वो भी तो नहीं आया। मैं छत पर बैठी खाली निगाहों से बाग की तरफ ही देख रही थी। आज आसमान पर हल्के बादल थे। उसने कहा था कि वो मोहब्बत के इम्तिहान में कभी फेल नहीं होगा, तो क्या उसका वादा कभी वफा होगा? मैं यकीनो गैर यकीनी की सरहद पर बैठी खुद से सवाल किए जा रही थी, लेकिन फिर लाशऊर से एक आवाज आई, वो जिनज़ादा है। मेरी मोहब्बत के नसाब में जिनज़ादे मकसद का नाम लिखा था। मैं छत से उतरी, पाँव में चप्पल पहने, दुपट्टा सर पर लिया और बाग की तरफ चल पड़ी। ये मुझे क्या हो रहा था? नीली आंखों वाला जिनज़ादा मकसद मेरे हवास पर पूरी तरह काबिज हो चुका था। मंजर को बदलने में आखिर देर ही कितनी लगती है। मैं बाग में पहुंची, बिल्कुल खामोश थी। मैं बाग के दरमियान ठीक उसी जगह पहुंची तो वहां मकसद जमीन पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बोला, अफसाना, मैं 4 दिन से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमसे सिर्फ इतनी इजाजत चाहता हूँ, मैं अपनी वालदा और वालिद को तुम्हारे घर लाना चाहता हूँ। क्या इजाजत है? मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, हाँ, इजाजत है। मकसद की खुशी दीदनी थी। वो बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा अफसाना, मैं जल्द आऊंगा और तुम्हें कोकाफ लेकर जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। अफसाना, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जाऊं? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मकसद गायब हो गया। मकसद वालिद मोहतरम के सामने हाजिर हुआ और बोला, वालिद मोहतरम, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा रिश्ता लेकर अफसाना के घर जाएं। उसकी बात सुनकर मकसद का वालिद खड़ा हो गया और बोला, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर इंसानों की दुनिया में इंसान के घर जाऊंगा? मकसद की वालदा भी वहीं खड़ी थी। मकसद बोला, वालदा, खुदा के लिए आप वालिद मोहतरम को मनाएं। हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है। इंसान और जिन की शादी भी तो मुमकिन है, ना मुमकिन तो नहीं। मकसद का वालिद बोला, मैं अपना आखिरी फैसला सुना चुका हूँ मकसद, आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर मकसद का वालिद कमरे से निकल गया। मकसद की वालदा बोली, मकसद, खुदा के लिए अपने इरादे से बाज आ जाओ, तुम्हारे वालिद कभी नहीं मानेंगे। मकसद ने कहा, वालदा, उन्हें मानना ही होगा। ये कहकर मकसद भी कमरे से बाहर निकल गया। मकसद शहंशाह जन्नात के दरबार में हाजिर हुआ। शहंशाह जन्नात का दरबार खाली था, सिवाय शहंशाह के और कोई नहीं था। मकसद ने अदब से सलाम किया। शहंशाह ने सलाम का जवाब दिया और बोला, अब आए हो मकसद, हम तो कब से तुम्हारे मुंतजिर हैं। मकसद बोला, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, मैं आपकी मदद की उम्मीद लिए आया हूँ।
शहंशाह बोला, हाँ बोलो मकसद। मकसद ने कहा, शहंशाह मोहतरम, मैं इंसान ज़ादी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वालिद मोहतरम किसी तरह नहीं मान रहे, मगर मैं जानता हूँ कि वो आपकी बात रद्द नहीं करेंगे। शहंशाह मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात? मकसद ने कहा, जी। इतने में मकसद का वालिद शहंशाह का मुशीर खास महल में दाखिल हुआ और मकसद को महल में देखकर ठटक कर रुक गया। शहंशाह ने कहा, मुशीर खास रुक क्यों गए, यहाँ आओ। मकसद का वालिद शहंशाह के तख्त के करीब जाकर खड़ा हो गया। शहंशाह बोला, देखो मुशीर खास, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए मैं तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगा। मेरा मशवरा है कि तुम अपने बेटे की बात रद्द न करो। अब देखो ना, तुम अपने दिल के हाथों मजबूर हो और तुम्हारा बेटा अपने दिल के हाथों मजबूर है। किसी एक की मजबूरी को तो जीतना ही चाहिए। बेटे की आंखों में आंसू देखकर तुम कौन सा खुश रह लोगे? लिहाजा अपनी जिद छोड़ दो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम उस लड़की के घर मकसद का रिश्ता लेकर जाओ। मकसद के वालिद ने कहा, शहंशाह मोहतरम, मैं चला भी जाऊं तो क्या वो रिश्ते के लिए हाँ करेंगे? शहंशाह जिन्नात ने कहा, देखो मुशीर खास, तुम उनके जवाब को अपनी अना का मसला न बनाओ कि वो हाँ करेंगे या नहीं। तुम्हारे लिए अपने बेटे की खुशी अहम है। हाँ, अगर वो इनकार कर देते हैं तो तुम खामोशी से लौट आना। मकसद कभी तुमसे ये गिला तो नहीं करेगा कि तुम उसकी खुशी में उसके साथ खड़े नहीं हुए। मकसद ने अपने वालिद पर एक नजर डाली। उसके वालिद ने कहा, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपकी कही हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं जरूर जाऊंगा। ये सुनते ही मकसद की आंखें खुशी से चमक उठी। मकसद को गए 2 दिन गुजर चुके थे। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। घड़ियाल ने दोपहर के 3 बजाए। मेरी आंखें उठते बैठते घड़ी की सुइयों पर टिकी रहती थीं। मुझे आज तक वक्त इतना तवील कभी नहीं लगा था। अचानक बाहर की गेट की बेल बजी। बेल की आवाज सुनकर मैं उठ बैठी। अम्मी ने गेट खोला तो बाहर मकसद का वालिद, उसकी वालदा और खुद मकसद खड़ा था। अम्मी ने कहा, जी आप लोग कौन हैं? मकसद का वालिद बोला, हम आपसे ही मिलने आए हैं, अगर इजाजत हो तो हम अंदर आ जाए। आज जुम्मे का दिन, अब्बू भी घर थे। अब्बू भी कमरे से निकल आए और बोले, अफसाना की माँ, कौन आया है? इतने में मकसद, उसके वालिद और वालदा घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अब्बू को सलाम किया और बोले, भाई साहब, वैसे तो हम मेहमान हैं, लेकिन रिश्तेदार बनने की ख्वाहिशमंद है। ये सुनकर अब्बू बहुत हैरान हुए और बोले, आप अंदर आ जाएं। अब्बू मेहमानों को बैठक में ले गए। मेहमान सोफों पर बैठ गए। अम्मी और अब्बू भी सोफे पर बैठ गए। अम्मी ने मकसद को देखकर कहा, अरे बेटा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब्बू ने कहा, पहचान तो मैंने भी लिया है। मकसद के वालिद बोले, भाई साहब, दरअसल बात यह है कि हमें लगी लपटी बात करना नहीं आती। हम जिन्नात हैं, कोकाफ से आए हैं। ये सुनकर अम्मी अब्बू दोनों हैरान रह गए। अब्बू ने कहा, भाई साहब, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मकसद के वालिद बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा, हम जिन्नात हैं, कोकाफ से आए हैं। हमारा बेटा आपकी बेटी अफसाना को पसंद करता है। हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। ये सुनकर अब्बू सोफे से उठ खड़े हुए और बोले, देखें, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा और आपका कोई मजाक नहीं है। हाँ, अगर ये बात सच है कि आप वाकई में जिन्नात हैं, तो आप यहाँ से उल्टे पांव वापस चले जाएं, क्योंकि मैं जिन्नात में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। ये सुनते ही मकसद और उसके माँ बाप खड़े हो गए। मकसद का वालिद बोला, मैं शहंशाह जिन्नात से एक वादा करके आया हूँ कि मैं आपके जवाब को अपनी अना का मसला नहीं बनाऊंगा, लेकिन हकीकत ये भी है कि मैं अपने बेटे की खुशी पूरी करना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा, मैंने आज तक जिन्नात सिर्फ कहानियों में ही पढ़े थे, लेकिन अगर आप वाकई जिन हैं तो मुझे आपका रख रखाव देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। लेकिन बहुत माजरत कि हम इंसान हैं, जिन साथी के साथ हम अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकते। अब्बू के मकसद के वालिद के साथ काफी देर बहस चलती रही, लेकिन उसका कोई नतीजा न निकला। आखिर मकसद और उसके वालिदैन कोकाफ वापस चले गए। उनके जाने के बाद अब्बू मेरे कमरे में आए और बोले, अफसाना, क्या तुम उस लड़के की हकीकत जानती थी? मैंने सर झुकाकर कहा, जी अब्बू। अब्बू ने कहा, अफसाना मेरी बेटी, तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं कर सकता जिसका पछतावा तमाम उम्र मुझे जीने ना दे।
तुम उस जिनज़ादे को अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहकर अब्बू कमरे से चले गए। कई दिन गुजर गए, जिनज़ादा मकसद ना आया। मैं छत पर बैठी बाग की तरफ ही देख रही थी कि अचानक हवा चली और मकसद मेरे सामने हाजिर हो गया। वो सर झुकाए खड़ा था। बोला, मैं कई दिन खुद को समझाता रहा, दिमाग चाहता था कि जिन्नात की फौज लेकर जबरदस्ती तुम्हारे घर चला आऊं और तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊं, लेकिन मेरा दिल राजी ना हुआ। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हाँ, तुम्हारे हिस्से के आंसू मैं खुद बहा लूंगा। जिस दिन तुम मज़ार पर अपने हमसफर के लिए दुआ करने आई थी, उस दिन मैं भी उसी मज़ार पर यही दुआ लेकर आया था। मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा हमसफर मिले कि तुम मुझे भूल जाओ। ये कहकर जिनज़ादे ने मुझे अलविदाई नजरों से देखा। मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि अब उसने वापस नहीं आना था। वो चला गया और फिर ना आया। मैं हर रोज छत पर बैठती और उस बाग की तरफ देखती और मेरी नजरें हर तरफ सिर्फ उसे ही तलाश करती थी। ठीक 15 दिन बाद खैर मुतवक्के तौर पर मेरा एक रिश्ता आ गया, जो शायद हर लिहाज से अम्मी अब्बू के मेयार पर पूरा उतरता था। मेरी शादी की तारीख रख दी गई। मेरी शादी की तारीख तो रख दी गई, लेकिन मैं अपने दिल से मकसद की यादों की नकूश खुरचने में मसरूफ थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।